Hello students, welcome to IE. In this video we are going to discuss another one numerical of semester question of MAKOUT examination. So let on the Fourier series. So let us see the numerical. Numerical क्या है? Find the magnitude and the phase spectrum of a Fourier series coefficient of the signal is given like this: 4 plus 2 cos 2 pi by 3 into t plus 4 sin 5 pi by 3 into t. So this is the total signal you can see. Now you have to draw the magnitude and the phase spectrum of the Fourier series coefficient of this signal. So for that, मुझे अगर Fourier series coefficient ढूंढना है तो पहले आपको ढूंढना होगा कि what is the fundamental frequency of this signal. इसका fundamental frequency क्या है? So for fundamental frequency, let us write the signal first. That is xt. क्या है? xt is equals to 4 plus 2 cos 2 pi by 3 into t plus 4 sin 5 pi by 3 into t. ये वाला सिग्नल आपके पास है. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिग्नल, ये वाला सेकेंड पार्ट, ये आपका एक पीरियडिक सिग्नल, ये भी आपका पीरियडिक सिग्नल. सो अब देखिए, ये वाले सिग्नल से, ये वाले पार्ट से मैं ये लिख सकता हूं कि इसका मेरा ओमेगा 0 क्या है, इसका ओमेगा क्या है. सो ओमेगा 1 में बोल सकता हूं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्ट is 2 pi by 3. So if it is 2 pi by 3, so what will be the time period? Time period क्या होगा? 2 pi divided by 2 pi by 3. So that means it will be 3 only. Similarly, from this part, we can find that the omega 2, that is the angular frequency of 4 sin 5 pi by 3 into t, is 5 pi by 3. Similarly, t2 value will be 2 pi divided by 5 pi divided by 3. Now this pi cancel out, this pi will cancel out. So यहाँ पे क्या होगा, आपको t2 मिलेंगे. So we can write this as 2 pi by 5 pi into 3, ऐसा ही आएगा. So that means we can find that it will be 6 by 5. So we can see that the time period of this part is 3 seconds and the time period, fundamental time period, is of the third part is 6 by 5. Now if we want to find the fundamental time period, so what will be the fundamental time period? So the fundamental time period of the total combination, ये total combination, that is the LCM of this T1 and this T2. So that is 3 by 1 and 6 by 5, ये दोनों का LCM. So if I do the LCM, so what will be the capital T, that is the fundamental time period of this total combination, will be 6 by 1 only. So that means the fundamental time period is 6 year. So if the fundamental, इसके एक इसका time period है, ये total combination का. So now from this we can find the fundamental angular frequency. Fundamental frequency क्या होगा? 2 pi by capital T. So 2 pi by capital T means 6. So that means pi by 3. So we have got the fundamental frequency. So this is the fundamental frequency of this total signal. So if this is the fundamental frequency of this signal, then from that signal, ये वाले सिग्नल से मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा ये वाला जो सिग्नल था, इसमें ये वाले पोर्शन क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 5 by pi by 3 है. So that means इसके साथ 5 मल्टीप्लाई है. So we can say this is the fifth harmonic. So this is the fifth harmonic. Similarly, I can also say that this is the component of second harmonic. ये मेरा second harmonic है.
So that means in this way we can calculate the fifth harmonic and the second harmonic of this xt signal. So now you can see that we have found the fundamental frequency and we have got the second harmonic. We have also determined कि ये मेरा second harmonic है, ये मेरा fifth harmonic है. So now from this equation we can write that xt को कहां से लिख सकता हूं? ये क्या है? cos थीटा. cos थीटा है, थीटा मीन्स 2 पाई बाई 3 इंटू टी. अब cos थीटा को मैं एक्सपोनेंशियल टर्म में यहां पे लिख सकता हूं. दैट मीन्स 4 प्लस 2. अब देखिए ये cos थीटा को मैं लिख रहा हूं, सो e टू दी पावर j थीटा. सो j इंटू थीटा मतलब ये वाला, सो 2 पाई बाई 3 इंटू टी. e टू दी पावर j थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस j 2 पाई बाई 3 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 मैं लिख सकता हूं ऐसे. सिमिलरली यहां पे भी मैं लिख सकता हूं 4. अब साइन थीटा को लिखिए. साइन थीटा का मतलब क्या होता है? e टू दी पावर j थीटा, j मतलब j, यहां पे 5 पाई बाई 3 इंटू टी, उसके साथ माइनस e टू दी पावर माइनस j थीटा, सो दैट इज माइनस 5 पाई बाई 3 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2j. Because we have used this formula that sin theta is equals to e to the power j theta minus e to the power minus j theta divided by 2j. और एक फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे, that is cos theta is equals to e to the power j theta plus e to the power minus j theta divided by 2. इसको यहाँ पे यूज किया, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया. सो यूज करने के बाद ये वाला आया. नाउ ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए. सिंप्लीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे e टू दी पावर j 2 पाई बाई 3 इंटू टी. यहाँ प्लस साइन 2 कैंसिल आउट, सो e टू दी पावर माइनस j 2 पाई बाई 3 इंटू टी. और यहाँ पे देखिए 4 और 2 कट आउट हो जाएंगे, सो 2 बाई j आ जाएगा. सो 2 बाई j e टू दी पावर j 5 पाई बाई 3 इंटू टी और माइनस साइन. सिमिलरली 2 बाई j e टू दी पावर माइनस j 5 पाई बाई 3 इंटू टी. सो आप देख सकते हैं मैंने xt को समेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में यहां पे प्रोड्यूस किया. सो दिस इज नथिंग बट द फूरियर सीरीज. अब देखो यहां पे ये कौन सा वाला हार्मोनिक है? ये कौन सा वाला हार्मोनिक है? 2 पाई बाई 3 मतलब सेकेंड हार्मोनिक. ये भी मेरा सेकेंड हार्मोनिक. सो दैट मीन्स 2, यहाँ पे माइनस साइन है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा 1 है, कोएफिशिएंट 1, ये वाला कोएफिशिएंट 1, सो दिस कोएफिशिएंट इज नथिंग बट C1, क्योंकि C2 सॉरी यहाँ पे C2, बिकॉज यहाँ पे n का वैल्यू 2 है. सिमिलरली यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? -2. सो दैट मीन्स दिस इज C of -2. सिमिलरली यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? यहाँ पे n का वैल्यू 5. सो दैट मीन्स दिस पार्ट इज नथिंग बट C5. सो ये वाले पार्ट क्या है? सो दिस इज नथिंग बट C of -5. सो वी हैव गॉट ऑल द कोएफिशिएंट C2, C-2, C5, C of -5. नाउ इफ यू वांट टू प्लॉट, मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम. सो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए आपका जो C वैल्यू है, Cn जो है, उसको मुझे Cn स्क्वायर में डालना है, मैग्नीट्यूड मॉड करना है. सो इफ आई प्लॉट द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, लेट अस प्लॉट द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. ये मेरा सपोज दिस इज n, सो n के वैल्यू. अब देखो n इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मेरा n इक्वल्स टू 0, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2, यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 और भी है. सो यहाँ पे और भी जाना चाहिए मुझे, क्योंकि 5 तक जाना है, 5. सो यहाँ पे n, तो ये मेरा 4, ये मेरा 5. सिमिलरली मुझे इस तरफ 1, 2, 3, 4, -5 तक जाना है. अब देखो C, और मुझे क्या प्लॉट करना है? मुझे प्लॉट करना है मॉड ऑफ Cn.
मॉड ऑफ Cn को प्लॉट करना है। सो अब ये इसके साथ 4 है, ये वाले यहाँ 4 है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, e टू दी पावर z 0 है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इस वाले पोर्शन पे मैं लिख सकता हूँ कि e टू दी पावर j इंटू 0, जिसको वैल्यू 1। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ C2, we have got the value of C minus 2, we have got the value of C5, we have got the value of C minus 5. Now if we do the magnitude, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे रूट ओवर मॉड ऑफ j, यहाँ पे भी मॉड ऑफ j। सो देन आफ्टर पुट कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड वी कैन प्लॉट दिस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। नाउ इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट टर्म, ये वाले फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था 4 था, यहाँ पे 4 था। इस 4 वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं 4 e टू दी पावर j इंटू 0 इंटू टी। दैट मीन्स इसका ये जो 4 वाला टर्म है ये किसके लिए है, n इक्वल्स टू 0 के लिए है। सो दैट मीन्स इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ C0। दैट मीन्स C0 का मैग्नीट्यूड क्या है 4 है। सो दैट मीन्स यहां पे आपको एक 4 मैग्नीट्यूड का इंपल्स मिलेगा फॉर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। फिर C1 तो नहीं है, C1 आपका 0, C माइनस 1 0, C2 पे 1 है, सो यहाँ पे आपका 1 मैग्नीट्यूड, और C माइनस 2 पे भी 1 है, सो यहाँ पे -2, ये -1, यहाँ पे आपका 1 वैल्यू। सिमिलरली 3 4 पे तो कुछ वैल्यू नहीं है क्योंकि C 3 4 कुछ वैल्यू नहीं निकला है, सो C -3 -4 का भी वैल्यू 0 ही आएगा। फिर 5 पे यहाँ पे देखिए 2/j है, इस 2/j को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/j को मैं लिख सकता हूँ -2j। इसका मॉड क्या होगा ओनली 2j, ओनली मॉड क्या होगा ओनली 2 होंगे। सो दैट मीन्स आई विल गेट अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2। सो वी हैव टू 2/j था, j के ऊपर लेके माइनस किया, फिर इसका मॉड किया तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली C ऑफ -5, C ऑफ -5 को यहाँ पे क्या है -2/j, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू j। इसका फिर मॉड लेना है तो मॉड लेने के बाद आपका आएगा फिर से 2, तो ये मेरा -5। सो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द फूरियर कोएफिशिएंट ऑफ दिस सिग्नल। सो व्हाट इज दिस, इट इज द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड spectrum. Now we need to draw the phase spectrum. Now if we want to draw the phase spectrum के देखिए C0 के साथ n जब 0 था तो मैग्नीट्यूड क्या था 4, कोएफिशिएंट 4 है, तो इसका एंगल क्या होगा 0 होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे इसका एंगल, इसके जो एंगल होंगे दैट विल बी 0 डिग्री। सिमिलरली C2 जो है इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 तो एंगल 0 डिग्री। C -2 का एंगल क्या होगा, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, सो 1 का एंगल क्या होता है 0। बट यहाँ पे देखिए जब C5 के बात आते हैं तो इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन है, सो माइनस साइन मतलब -90 डिग्री, यहाँ पे -90 डिग्री। सिमिलरली इसका एंगल क्या होंगे +90 डिग्री। सो दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ the phase spectrum, if I draw the phase spectrum here, so let us draw the phase spectrum here. So ये मेरा n वैल्यू है, ये मेरा 0 और ये 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, this is 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5। now C0 में जब C0 था तब एंगल कितना है 0 डिग्री, तो आपका एंगल यहाँ पे 0 डिग्री। 1 के लिए तो कोई एंगल ही नहीं था, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सारे जगह पे 0, सारे जगह पे आपका 0 एंगल आ जाएंगे। बट C5 का एंगल कितना है -90 डिग्री, सो यहाँ पे -90 डिग्री, और C -5 के एंगल +90 डिग्री, सो +90 डिग्री। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एंगल ऑफ Cn। सो दिस इज द फेज स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। सो वी कैन राइट दैट दिस इज द फेज
स्पेक्ट्रम. नाउ यू कैन सी ये जो फेज स्पेक्ट्रम है और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये दिस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम विल बी, देखिए इवन फंक्शन है. सो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज द इवन फंक्शन ऑफ n के इवन फंक्शन है. सिमिलरली आपका जो फेज स्पेक्ट्रम है, दिस इज अ ऑड फंक्शन ऑफ n. हमेशा आपका ये होंगे कि ऑड फंक्शन ऑफ n होगा, ये इवन फंक्शन ऑफ n होंगे. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फेज स्पेक्ट्रम एंड द magnitude spectrum of a given signal, and the most important thing is that this was a question of MACOUT. ये MACOUT का एक क्वेश्चन था सेमिस्टर में. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर अपकमिंग सेमिस्टर एग्जामिनेशन, एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.